Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. I am uploading videos on set theory. So today I will discuss the lecture 1 in which I will define you what do you mean by set and various types of set. So the first question is what do you mean by set? Set it's a well defined collection or list or class of objects. Say for example you have the states of India, so it's an example of a set. The seven wonders of India, or you can see in mathematically you can write this as a1 is equal to curly bracket 2 4 6 8 means set of even numbers, and a2 this is equal to a e i o u set of vowels. Then if I write three names Ram, Sham and Meera, this is also an example of a set. For example, you have this set of integers. So set of integers has the elements 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. So these all are examples of a set which satisfies certain property, that is said to be a set. Now we will discuss about what do you mean by finite set, what do you mean by infinite set. As the name refers, finite set means which contains finite number of elements. For example, you can see that the states of India, it's a example of a finite set. The seven wonders of India, this is also an example of a finite set. Ram, Sham, Meera. So three names are there. It is also an example of a finite set. Set of vowels. It contains five elements. So it's an example of a finite set. Now you can see that this set of even numbers, it contains 2, 4, 6, 8 and so on. So it's an infinite set. Set of integers, it's an infinite set. Set of natural numbers, set of complex numbers, set of real numbers. These all are examples of the infinite set. So, a finite set is set which contains specific number of different objects. And examples, as I have already told you, example 1.2, 1.3, 4, 5, these all contains finite set. Or you can say number of weeks in a month. That is also an example of a finite set. Infinite set, you have example 1.1 and 1.6. Now, the next is what do you mean by subset? Subset means you have a set A and you have the set B. Now, if all elements of set A they belongs to the element of the set B, then A is said to be subset of B. तो A हमारा छोटा सेट हो गया, B हमारा बड़ा सेट है. अगर A के सब एलिमेंट्स B में हैं तो A हमारा सबसेट बन जाएगा B का. So just I will read it down. Let A and B be two sets. If every member in a set A is also the member of the set B, then A is said to be subset of B. और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? A subset of B. Next you have नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगर आपके पास A हैज द एलिमेंट 1 2 3 और B के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5. अब आप देख सकते हैं कि A के सब एलिमेंट्स B में हैं, तो A हमारा B का सबसेट बन गया. नाउ दिस सेट ऑफ रियल्स में क्या होता है? सेट ऑफ रियल्स इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. And Q is the set of rational numbers which contains the element of the type P by Q where Q is not equal to 0. तो Q हमारा छोटा सेट हो गया, R हमारा बड़ा सेट है. तो क्योंकि Q छोटा सेट है, R बड़ा सेट है, तो Q जो है वो R का सबसेट बन गया.
right? These are the example of the subset. अब next is, what do you mean by equal set? As the name refer, equal means बराबर. तो अगर हमारे पास A और B दो सेट है और दोनों में एलिमेंट सेम है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स भी सेम है, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट. तो जैसे मान लीजिए ए आपके पास सेट है 1 2 3, बी आपके पास सेट है 3 1 2. अब आप देख सकते हो कि ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है, पर ऑर्डर डिफरेंट है. तो ऑर्डर डजंट मैटर. तो ये क्या हो गया? इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए इक्वल सेट. नेक्स्ट इज a is equal to 2 3, b is equal to 3 2 2 3. अब एलिमेंट a और b में सेम है, पर b में रिपीटेड एलिमेंट है. इवन देन these two sets are equal set. नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि a और b अगर दो सेट है तो a के सारे एलिमेंट b में होंगे, पर a b के इक्वल नहीं होगा. क्लियर? देन इट इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट. A is called a proper subset of B if A is a subset of B but A is not equal to B. मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, पर A जो है B के इक्वल नहीं है. तो यू कैन सी दैट A किसके बराबर है? 1 2 के बराबर, और B किसके बराबर है? 3 1 2 के बराबर. तो A में कौन से एलिमेंट है? 1 2. B में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3. तो 1 2 एलिमेंट तो है, पर B सेट जो है वो A सेट के बराबर नहीं है. उसी तरह से आपके पास एग्जांपल हुआ A is equal to 4 3 और B आपके पास हुआ 3 1 4 3. अब A में एलिमेंट कौन से हैं? 4 3. B में एलिमेंट कौन से हैं? 3 1 4 3. अब 4 3 4 3 दोनों में एलिमेंट है, पर B जो है वो A के इक्वल नहीं है. तो A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है. प्रॉपर सबसेट मीन्स मतलब A के एलिमेंट B में है, पर A और B इक्वल नहीं है. नेक्स्ट यू हैव पावर सेट. व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? The collection of all subset of a set is said to be power set of A. अब मान लीजिए A आपके पास कोई सेट है, उसमें n एलिमेंट है, तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट मीन्स कि A में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? तो सबसेट होंगे, इट विल बी 2 raised to power n. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रेज टू 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है? तो मान लीजिए A आपके पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2. तो पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 raised to power 2 हो जाएगा. ठीक है? अगर हम A को इस तरह से लिखते हैं then it is said to be cardinality of the set A. और PA को क्या कहते हैं? PA is said to be power set of A. Next is universal set. What do you mean by universal set? The universal set क्या होता है? Universal as the name refer कि बड़ा सेट, मतलब जो भी सेट होंगे वो एक बड़े सेट के सबसेट्स होंगे. जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूं कि U एक यूनिवर्सल सेट है, तो A B C जितने भी सेट्स हैं वो U के सबसेट्स होंगे. मतलब कि A B C में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स U में होंगे. Then U is said to be universal set. Let A be any set. A कोई सेट है. If every subset is a subset of A, then A is said to be universal set.
In set theory, the set of complex number is a universal set. In human population studies, all people come from the universal set. तो set of complex number एक बड़ा set हो गया, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया. set of real numbers एक बड़ा set हो गया, तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया. ह्यूमन पॉपुलेशंस, जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सब क्या हो गया? एक बड़ा सेट हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट एज द नेम रेफर कि मान लीजिए ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं और उनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. मान लीजिए ए सेट है, उसमें 1 2 एलिमेंट है, बी सेट है, उसमें 3 4 एलिमेंट है. तो डिसजॉइंट सेट का मतलब हुआ ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. Two sets are said to be disjoint if both sets have no common element. अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम उन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट. मान लीजिए ए आपके पास सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3. बी सेट है, इसके एलिमेंट हैं 4 5 6. Then we say that A and B are disjoint. क्यों? क्योंकि A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं. तो क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो A और B सेट कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए. उसी तरह से E हमारे पास कोई सेट है 1 2 3. B हमारे पास सेट है 3 4 5 6. अब आप देख रहे हो कि E में एक एलिमेंट 3 रखा पड़ा हुआ है, B में एलिमेंट 3 पड़ा हुआ है. तो इन दोनों सेट्स में एक एलिमेंट कॉमन है. क्योंकि इन दोनों सेट्स में एक एलिमेंट कॉमन है तो ये दोनों सेट्स जो हैं डिसजॉइंट सेट नहीं है. ठीक है, तो टुडे आज हमने क्या डिस्कस किया? सेट क्या है और वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स. थैंक्स टू ऑल. तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू अगेन.